अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज इतवार का दिन था और हम पहली मर्तबा मैसूर शहर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मेलापुरा गांव पहुंचे, जो श्रीरंगपट्टनम ताल्लुक मंड्या डिस्ट्रिक्ट है, जहां कुदरत के हसीन मनाजिर सरसब्ज व शादाब दरख्तों और पौधों के दरमियान खायम एक निहायत खूबसूरत और दिलकश मुकाम अल्फा वेलनेस रिसोर्ट देखने का मौका मिला। माशाअल्लाह, ये जगह अपनी खूबसूरती, पुरसुकून माहौल और कुदरती नजारों की वजह से दिल को छू लेने वाली है। आज इस खूबसूरत अल्फा वेलनेस रिसोर्ट की इफ्तिताह तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें मैसूर शहर के मुअज़्ज़ज़ और मोअतबर उलमा इकराम, सियासी शख्सियात, शहर की मारूफ समाजी हस्तियां और सऊदी अरब से तशरीफ लाए मुअज़्ज़ज़ शेख हजरात, महकमा पुलिस के अफसरान और शहर के मुतअद्दिद अमायदीन ने शिरकत की। इस खूबसूरत और मुनफरिद रिसोर्ट के बानी और चेयरमैन जनाब डॉक्टर रिजवान अहमद साहब हैं, जिन्होंने एक खूबसूरत सोच के साथ इस मुकाम को वजूद बख्शा है, ताकि लोग कुदरत के हसीन माहौल में सुकून, सेहत और राहत के लम्हात गुजार सकें। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको अल्फा वेलनेस रिसोर्ट के खूबसूरत मनाजिर दिखाएं, यहां मौजूद सहूलियात से रोशनास कराएं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेलापुरा गांव में इस शानदार प्रोजेक्ट को कायम करने के पीछे क्या मकसद और क्या विजन है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुकम्मल वीडियो देखने के बाद ही आपको इस खूबसूरत अल्फा वेलनेस रिसोर्ट और उसके मकासद के बारे में बेहतर अंदाज में जानने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अल्फा वेलनेस रिसोर्ट के खूबसूरत मनाजिर और सुनते हैं इसके बानी जनाब डॉक्टर रिजवान अहमद साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने क्या कुछ कहा है। रक्षित एमएल सर, ಇದು ನಮ್ಮದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ಟು ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ BP, ಲಿಪಿಡ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈವನ್ ECG ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಸಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. 65 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು AI ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಅಪ್ ಟು 24-25 ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಸ್ಲರ್. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಸರ್. ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಮೇನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಭಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ IV ಥೆರಪೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತು ಈ ತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದೆಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಇದು ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು IV ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀ ಪೇನ್ ಇದೆ, ವಿ ಗೋ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೀ ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ನು ಇದೆಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಾಬ್ದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. देखो पीछे देखो 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 ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್. ಇದರಿಂದನ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕತ್ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ US ಇಂದ ತಂದಿರೋ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇದು ಕಾಲ್ ಮಸಾಜ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಫೀಟ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೋನಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, 30 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜನ್ನ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ ಇಂದ ಗಲೀಜು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶೆಕೆಯಿಂದ. ಇದು ನಮ್ದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜು, ಸೀರೋದಾರ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಇದು ಇದೆ ಪಂಚಕರ್ಮ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಡತೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 1/4 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡವು, ಯಾರು ಬಿಗಿಯಾಗಿರೋಂಗೆ ಬೈ ಉಜ್ಜು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವು ಆದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೆದ್ದಿ 500 ದಂಡ ಸಪ್ಪ ಬಿಡೋರು 1,000 ಹೊಡಿವಿ. ಎಂತದ 1,000 ದಂಡ ಸಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅದ್ರ ಮಾರನೆಗೆ ಡೈಲಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು ತುಂಬಾ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंसान के लिए सेहतमंद रहना करोड़ों की दौलत से लाख दर्जे बेहतर है। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग आराम तलबी के शिकार होकर मुख्तलिफ बीमारियां अपने जिस्म में पालते हैं। हमारे डॉक्टर रिजवान साहब पहली मरतबा यहाँ आने का मौका मिला पूर्व में, और यहाँ आपने दिखाया सब चीज़ें। नई नई मशीनरियाँ हैं। एक मशीनरी आपने बल्कि यूनिक दिखाई, जिसमें एक मरतबा बैठने पर सारे अमराज का पता चल जाता है। और इससे बड़ी चीज़ ये कि फॉरेन में रहने वाले जितने डॉक्टर से उनका कांटेक्ट इस मशीन से हो जाता है। उनकी ओपिनियन लेकर इलाज आसान किया जाता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, और थायराइड के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, उनका आसानियों से इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि हम जो शुगर में इंसुलिन वगैरह लेते हैं, उनसे उनको आज़ाद करा कर हम बहुत आसान सहल इलाज पर लाने की कोशिश करना हमारा एक अजीम मकसद है इस अस्पताल का, जो हम आसानी सहूलत हम देना चाहते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। लोग थक हार कर गोलियां खा रहे हैं, बीपी के, शुगर के, हर दिन रात गोलियां खाते रहते हैं। साइड इफेक्ट भी उससे कम नहीं होते। मेडिकल की गोलियां लेते रहते हैं, साइड इफेक्ट भी होता है उसके ज़रिए से। कभी किडनियों पर भी असर पड़ता है, और इसी तरीके से फैटी लीवर भी हो जाता है। आपने जो मंसूबा बनाया है कि हम इलाज को बहुत आसान करके देना चाहते हैं, मरीजों को सहल आसान बनाना चाहते हैं। मशीनरियाँ भी है। एक मशीन दिखाई जिस पर खड़ने से आदमी के सारे आज़ा रिलीज होते हैं, उनके रग वगैरह, जिससे बदन में दर्द वगैरह का मसाइल नहीं होता है। बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ रिजॉर्ट टाइप है ये पूरा है। मरीज जब अस्पताल को जाता है तो हैबत में आ जाता है, डॉक्टर कहता है ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, परेशान हो जाता है मरीज। तो यहाँ आने के बाद अपना घर जैसा एक जी आदमी ख्याल करता है कि मेरा घर है ये। तो यहाँ स्विमिंग पूल भी है और एक ऑक्सीजन नहीं मिलती है शहर के मुकाबले में, यहाँ रहता है और फ्री, दिमाग में टेंशन नहीं रहता, फ्री होकर अपना इलाज मुआलजा कराता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस अस्पताल को दिन नौकिन राक्षणी तरक्की दे। जो खुसूसन आपने जो आयुर्वेदिक सिस्टम से जो इलाज मुआलजे की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, इंशाल्लाह इस पर तरक्की अता करे। मुझे याद पड़ता है कि हमारे केरला में जो नॉलेज सिटी में जो बड़ी मस्जिद है वहाँ हम गए थे। वहाँ के मुस्लियार से मुलाकात हुई, जो बड़े इमाम हैं, केरला के बड़े आलिम हैं। उन्होंने दिखाया था जी वहाँ आयुर्वेदिक का इलाज होता है। वहाँ पर भी सऊदी से, कुवैत से लोग वहाँ आए, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी एक ऐसा कि कॉटेज टाइप बनाकर फ्री ऑफ टेंशन, दिमाग से फ्री रहो, इलाज कराओ जाओ, वैसा ये माहौल ऐसा ही नज़र आ रहा है। हमारे खुश आइन बात है कि मैसूर के करीब है ये। शहरियान मैसूर, अतराफ अकनाफ के लोगों के लिए इससे सहूलत, इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह इस अस्पताल को तरक्की अता फरमाए, मरीजों की शिफा याबी डॉक्टर रिजवान साहब और दीगरों से अता करे। मुझे खुशी की बात है कि मक्के मुकर्रमा से बहुत बड़े एक हमारे मेहमान मुकर्रम जो मुक़द्दस सरजमीन से यहाँ तशरीफ़ लाए इस अस्पताल की ज़ियारत के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा, मिल्लत को, गरीब आवाम को जो बीमारियों से बहुत ही जी कसब कुर्सी की हालत गुजार रहे हैं, दिन रात गोलियां खा रहे, वो डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए, इधर गए उधर गए, एक कयामत का माहौल हो जाता है घर। मैं उम्मीद रखता हूँ इस दोस्ताना माहौल में जो अस्पताल खोले हैं इंशाल्लाह इससे बड़ा फायदा होगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮೇಳಪುರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಆಲ್ಫಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೇನೇ ಬಂದ್ರು ಇದೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲುಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಸರ ಈ ಪರಿಸರನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಐತೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನೇಚರ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಘಟ್ಟ ಐತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಐತೆ, ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತ ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಗಳೈತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಶುಗರು ಹೈ ಆದಾಗ, ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಹೈ ಆದಾಗ, ಮತ್ತು ಮೈಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸದೃಢವಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಏನು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ದು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೈತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು
ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಬಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ NR ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದುಬೈಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ದುಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಶೇಖ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. थैंक यू। अल्फा वेलनेस वेलनेस के नाम से ये जो आपने इफ्तिताह किया, इसका क्या मकसद है और आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को है ना राहत देना चाहते हैं, उसको एक ऐसा इलाज करे जिससे वो हमेशा के लिए दवा लेना ना पड़े उनके लिए, है ना। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि बहुत सारे आज जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, मगर यहाँ पर हम इसको लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको सबको ऐसा इलाज दें ताकि वो हमेशा के लिए सेहतमंद रहें। और ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर है ना हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कह रहे हैं। इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट जो भी मेडिसिन का जो फील्ड है उसको ले रहे हैं, जैसा कि हम आयुर्वेदा में जो बेस्ट है उसको ले रहे हैं, और हम नेचुरोपैथी का भी बेस्ट ऑफ बेस्ट लेते हैं, एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन को इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी एडवांस है, जो जीन टेस्टिंग DNA टेस्टिंग तक भी जाता है। वो उसको लेके हम रूट कॉज को देख के फिर हम उसका इलाज करते हैं। मेल फीमेल को सबको एक ही है इलाज। इसमें क्या है, देखिए ऊपर वाले ने जो बनाया है बॉडी, एवरीबडी हैज ए यूनिक बॉडी, है ना। जैसा कि हम हमारे थम्स को देखते हैं, फिंगरप्रिंट्स, इट इज ऑल यूनिक, राइट। सो गॉड हैज गिवन अस, बॉडी भी हमारा एक यूनिक है। अब इस सिस्टम को हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या है, क्यों हो रहा है। अगर हमें कोई बीमारी आए तो इसकी वजह जड़ तक जाना पड़ेगा, तब जाके उसका हम सही से इलाज कर पाएंगे, ना कि बस हम थोड़े से उसको शुगर समझ के बस उसको गोलियां दे दे। इससे बस वो मेंटेन रहेगा मगर उसका इलाज नहीं हो पाता। सर, आप खुद का कितने साल का एक्सपीरियंस? मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हमने बहुत सारे लोगों को इसमें इंसुलिन और बहुत सारे मेडिकेशन से हमने उसको फ्री किया है। वी हैव दैट। चार्जेस वगैरह ज्यादा रहेंगे सर? हम चार्जेस से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। वी फोकस ऑन क्या रिजल्ट हम उनको दे सकते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चार्जेस इज ऑल लास्ट। सर, यहाँ पर इतनी बड़ी जगह में जो है आपने ये बनाया है, बस ये जो इलाज होता है वो 2-3 रूम है, इसके अलावा जो गार्डन है, जो विलास है, जो स्विमिंग पूल है, जो प्ले ग्राउंड है, वो किस लिए है, उसका क्या मकसद है? सर देखो, ऊपर वाला एक हमें एक सिस्टम दिया है कि जब तक हम नेचर के साथ जुड़े रहते हैं तो हम लोग एक बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं। यू नो, हमारी बॉडी जो बनाई है ये नेचर के साथ रहने के लिए है। जब हम नेचर से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसा अब हम सिटी में रहने लगे तो हम ज़्यादा चलते नहीं हैं, हम गाड़ियों में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे कोई ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता, यू नो, और हम फ्रेश एयर को ले नहीं पाते। वी आर ऑल गेटिंग यू नो पोल्यूटेड दिस थिंग व्हेन यू आर। इसका हमारा जो मकसद था यहाँ पे आके ये वेलनेस रिजॉर्ट बनाने का, ये सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम सिटी से हटके, अर्बनाइजेशन से हटके, व्हेन वी कम क्लोजर टू द नेचर, इसमें क्या होता है कि आपका ऑलमोस्ट यू विल गेट फील काम। आप लोग भी फील कर रहे होंगे व्हेन यू आर हियर, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, यू नो। सिटी में ये नहीं मिल पाएगा आपको। जैसा कि और एक एग्जांपल है, कोई भी बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है तो डायरेक्ट जाते ही उसको घबराहट होने लगती है, यू नो, वो फील लगता है कि मैं हॉस्पिटल में आया, करेंगे क्या ऑपरेशन, ये वो। मगर यहाँ वो नहीं देना चाहते। हम देना चाहते हैं कि भाई तू आया, यू विल रिलैक्स, आप एक माहौल रिलैक्स का लेके फिर उसका इलाज भी करेंगे। सर, वो शेख साहब जो आए हैं उनके बारे में बताएं। वो कहाँ से आए? ये सऊदी अरेबिया से, ही इज डॉक्टर मिशारी अलुतेबी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मेजर जनरल है, तो वो वहाँ से आए। हम सऊदी अरेबिया से भी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि हम उनके साथ एमओयू किए हुए हैं बहुत सारे। क्योंकि सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है,
तो वहाँ के लोग यहाँ पर आके ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारा गवर्नमेंट से भी एमओयू हुआ है। तो मैसूर और मंडिया वालों को क्या पैगाम है सर आपका वेलनेस से? सर हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिसको भी जो बीमारी शुगर है, थायराइड है, फैटी लिवर और लाइफस्टाइल डिसीजेस है, तो वो यहाँ पर आए, एक बार चेक कराए, फिर वो देखे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको वो रिजल्ट। डिटॉक्स का बॉक्स रखी उसका क्या प्रोसेस क्या है? हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जैसा कि ये फर्स्ट टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एआई टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसके अंदर कोई भी आता है पेशेंट तो हम 65 पैरामीटर्स यहीं पे करते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं रहते हुए उसको पूरा टेस्टिंग देके फिर उस टेस्टिंग के हिसाब से वो हमारा जो मॉडल बनाए उससे वो डायग्नोज होके ट्रीटमेंट प्लान निकलता है। सर आपके आज के इफ्तिताही प्रोग्राम में एमएलए साहब, अब्दुल्ला साहब, आफ्ताब साहब, तमाम सऊद साहब, हम लोग तमाम आए हुए हैं, उलमा इकराम आए हैं, उनका शुक्रिया किस तरह है? सर मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में ये टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं, तो मैं अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल है, इस तरह कोई बीमारी ना हो, क्योंकि आपने नाम इसका रिसोर्ट दिया है, तो सिर्फ रिसोर्ट के लिए भी आ सकते हैं क्या सिर्फ बीमारी ही के लोग यहाँ पर आ सकते हैं? एक्चुअली ये बना है वेलनेस रिजॉर्ट, तो कोई भी आदमी बीमार है तो हम उसको लेके सेहतमंद बनाना ये हमारा गोल है, मकसद है। रिजॉर्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है कि हम कितने लोगों को सेहत पहुंचा सकते हैं, ये मकसद है हमारा। थैंक यू, थैंक यू। हमारा इनोवा का